Hi dear student, today we are discussing unit of English that is presentation. So what is presentation? Presentations हमारे पास क्या होता है? Different type of presentation. So today we are discussing presentation in detail. Before starting video, I request to all that please like our video, subscribe our channel and share with your friend. What is presentation? A presentation is a mean of communication that can be adapted to various speaking situation such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team. तो presentation क्या है कि वो मीन्स हमारे पास मेथड जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं. प्रेजेंटेशन ये जिसके जरिए हम प्रेजेंट करते हैं, किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी पर्सन को दिखाते हैं, उसे अपनी बात बताते हैं, समझाते हैं. तो ये हमारे पास टॉकिंग टू अ ग्रुप भी होता है, ग्रुप के साथ बात करना, विद इन मीटिंग, ऑनलाइन भी हमारे पास होता है, या किसी टीम वगैरह को जब आप उसको कम्युनिकेट करते हैं तो उसका एक मेथड हमारे पास प्रेजेंटेशन भी है. अ प्रेजेंटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कैन बी डिस्क्राइब एज एन एक्टिविटी वेयर अ presenter present his or her ideas, explaining a process, provide information or raises question regarding a subject for public debate. So this it's very important paragraph. It's a context of public. हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग में जो प्रेजेंटेशंस की डेफिनेशन वो ये है कि जब कि प्रेजेंटेशन हमारे पास ऐसी एक्टिविटी है कि जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन देते, किसी को हम आइडिया देते हैं, हम कोई क्वेश्चन रेज करते हैं, हम जो है डिबेट करते हैं किसी पब्लिक के साथ, हम कोई प्रोसेस प्रोसीजर समझाते हैं. सो दैट्स इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन. Now there are different types of presentations. Presentations can be presented for different purpose. So here on the basis of purpose, different type of presentation. So before presenting a presentation, it is necessary that you have a clear idea regarding the purpose of presentation. There are 5 most common type of presentation, that is informative, persuasive, instructional, arousing and decision making. So these are the 5 types of presentation on the basis of their purpose. So we explain one by one. First one is informative. So what is informative presentation? Informative presentation is a type of presentation in which you want to deliver, to communicate some important information with your fellows, with your audience. So you might need to create an informative presentation to explain important detail tied to a topic before an ideas. So if you want to give an information to your audience, so you have to combine, you have to make an idea about the information which you want to deliver. This type of presentation might be a brief with essential information. और जो informative presentations होती हैं वो brief होती हैं, to the point होती हैं. तो ये MCQs के लिए आप याद रख लीजिए, MCQs इंशाल्लाह आएगा कि हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, वो ब्रीफ होती है. इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, इसके बाद सच अ प्रेजेंटेशन इज यूजुअली बेस्ड ऑन फैक्ट एंड अवॉइड too many complicated detail and assumption. Example, class lecture, research finding, technical information, result from experiment. So these are the informative presentation and you have to make it brief and informative in order that your audience will not bore from your presentation. Persuasive presentation is geared toward convincing the audience to believe a specific point of view. So in persuasive presentation you have a point and you means persuade, you convince your audience to believe in a specific point which you want to deliver, which want to present before them. Such a presentation might conclude with a call to action. For example, product demos, presentation on social issue, debate etc. तो ये हमारे पास ऐसे प्रेजेंटेशन ये होता है जिसमें हम सामने वाले को कन्विंस करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये सही है, जो मैं कह रहा हूँ ये आपने ये करना होगा, जिससे मैं मना कर रहा हूँ आप इससे मना होंगे. थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शनल. तो इंस्ट्रक्शनल इसके नाम से जाहिर है कि इसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सच अ प्रेजेंटेशन माइट बी टू प्रोवाइड एन ऑडियंस विद instructions such as regarding a process or the use of product. So in this presentation we want to provide audience with an important instructions. Such presentation are usually longer as they require demonstration and detailed explanation of each aspect of the topic. And
it shows that these presentations are longer because in this presentation you have to deliver full instructions to your audience. इसमें आप अपने ऑडियंस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास लेंथी प्रेजेंटेशन होते हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं तो वो फुल बाय फुल डिलीवर हो सके. एग्जांपल्स आर ट्यूटोरियल्स फॉर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, डिवाइस और मशीन, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स सिलेबस एटसेट्रा. सो दिस आर the types of instructional presentation. Please keep in your mind these types. ये आपके MCQs में आएंगे. पहले से आपको पता हो कि हमारे पास इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन के कौन से टाइप्स हैं, हमारे पास जो है इंफॉर्मेटिव के कौन से टाइप है, तो ये सब आप याद रख ले. इसके बाद एरोजिंग. दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज मीन टू मेक द ऑडियंस थिंक अबाउट अ सर्टेन टॉपिक्स. दिस कैन बी अपील टू द इंटेलेक्ट and emotions of the audience to point them toward a certain point of view or a start a social debate. So what is this कि इसमें आप जो है एरोज करते हैं लोगों को जो है मोटिवेट करते हैं इसमें कि जो आप जो है सर्टन टॉपिक है उसके बारे में लोग सीरियस हो जाए, उसको सीरियस ले. तो इसमें कहीं एग्जांपल है रिलीजियस स्पीच प्रेजेंटेशन अबाउट टेबो, मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन. तो ये हमारे पास मोटिवेशनल या रिलीजियस वगैरह जिसमें आप लोगों को जो है एरोज करते हैं, लोगों को जगाते बेदार करते हैं, लोगों को एक पॉइंट की तरफ जो है लोगों का रुझान करते हैं, उसको उसकी तरफ टर्न करते हैं. Decision making. Some presentation are conducted with a sole aim of providing fact and figure to help the audience reach a decision. For example, when you have an audience and they have a confusion in order to make a decision, or that if you are audience and they have a different choices to select one thing, to decide one thing, and you give a presentation, you present before them some important points, some important point that will help them in making decisions. So that type of presentation is called decision making presentation. This might include a business presentation about say market share, profit, project revenue, market competition, so that the board members might be able to decide a future course of action for the company. तो ये क्या है हमारे पास कि इसमें कोई मार्केट वगैरह में कोई चीज़ लेना चाहते हैं, मार्केटिंग वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह में, तो वहाँ पे डिसीजन लेनिंग में जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन परफॉर्म, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो उससे जो है उसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प हासिल होगा. एग्जाम्पल क्या है कि बिजनेस मीटिंग, प्रेजेंटेशन अबाउट लेजिस्लेशन एंड लॉ. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन. So here we have elements of presentation. Making a presentation is a way of communicating your thoughts and idea to an audience. Following are the key elements. So these are the key element of presentations. That what are the elements of presentation, and here we will study one by one in detail. That is context, presenter, कॉन्टेक्स्ट, प्रेजेंटर्स, ऑडियंस, मैसेज, रिएक्शन. तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसको सामने रखकर हमने कोई प्रेजेंटेशन बनानी और डिलीवर करनी होगी. कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू डेवलप अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. व्हेन एंड वेयर विल यू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन. जब आप कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो चीज आप डिलीवर करना चाहते हैं, जब आप वो सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में इनका सोल्यूशन होना चाहिए कि मैं क्या प्रेजेंट करूंगा और किन के सामने प्रेजेंट करूंगा. मेरे पास सामने कौन से लोग होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड. लाइव मैं प्रेजेंट करूंगा या प्री रिकॉर्डेड मेरे पास होगा. विल दी प्रेजेंटेशन बी टू अ स्मॉल ग्रुप और लार्ज क्राउड. मैंने किन को प्रेजेंटेशन देना है, मैंने जलसे में कोई वो करना है, या मैंने अपने क्लास वालों को, या मैंने विद इन ग्रुप प्रेजेंटेशन करनी है, या मैंने ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करनी है, मेरे पास लोग कितने होंगे. व्हाट इज द ऑडियंस एक्सपेक्टिंग टू लर्न फ्रॉम यू एंड योर प्रेजेंटेशन. और जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो लोग उससे क्या सीखेंगे. तो ये तीन क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि जब भी आप कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं, जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए मवाद ढूंढते हैं, तो ये आपके पास तीन क्वेश्चन के आंसर आपके जहन में होने चाहिए कि मैं किन लोगों के लिए प्रेजेंट करूंगा, मेरे पास ऑडियंस कितनी होगी, मैं किस टाइप का प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूंगा, लाइव होगा, प्री रिकॉर्डेड होगा. ये ऑल दिस एस्पेक्ट विल चेंज दी प्रेजेंटेशन. ये हमारे पास प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं. इसके बाद है प्रेजेंटर. द रोल ऑफ प्रेजेंटर इज टू कम्युनिकेट विद द आइडियाज एंड कंट्रोल द प्रेजेंटेशन. जो प्रेजेंटर होता है, जिस तरह अभी मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो
अगर मैं ये क्लास में प्रेजेंट कर रहा था करना चाहता था या करता था तो क्या होता कि मुझ में ये क्वालिटी होनी चाहिए थी कि मैं ऑडियंस को जो है परसुएट करता, कंट्रोल करता प्रेजेंटेशंस के लिए, उनके साथ कम्युनिकेशन वगैरह। रिमेंबर दो दैट इफ यू वांट सम ऑफ काइंड ऑफ इंटरेक्शन दिस मे मीन हैंडलिंग ओवर द कंट्रोल टू योर ऑडियंस। तो ये प्रेजेंटर पे डिपेंड करते हैं कि वो अपने ऑडियंस को कंट्रोल करता है नहीं करता, उनको परसुएट करता है, सेटिस्फाई करता है, वो जो है इंस्पिरेशन उसके लिए है या नहीं है। तो ये हमारे पास जो है एक एलिमेंट है प्रेजेंटेशन का। अब ऑडियंस पे आ जाते हैं। बिफोर प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर प्रेजेंटेशन इज वर्थ कंसीडरिंग योर पर्सपेक्टिव ऑडियंस। जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे ऑडियंस जो प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो वो कौन होंगे, क्यों ये आगे आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। टेलरिंग योर टॉक टू द ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट एंड द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर कि जब आप ऑडियंस वगैरह के बारे में आपके जहन में सवाल आते हैं तो ये चीजें जो है आपके जहन में होंगी। द साइज ऑफ द ग्रुप और ऑडियंस एक्सपेक्टेड कि आपके पास प्रेजेंटेशन सुनने के लिए कितने ऑडियंस एक्सपेक्टेड हैं, उसके मुताबिक आप जो है अपना प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। दूसरा एज रेंज क्या है कि आप बूढ़ों से बात करते हैं, बूढ़ों को प्रेजेंट करते हैं, आप बच्चों को, आप यंग को, क्योंकि तमाम का लहजा जो है चेंज होता है। अगर आप बूढ़ों के सामने करते हैं तो तब आप ज़्यादा फन वगैरह नहीं करेंगे, आप सीरियस बात। अगर आप जो है बच्चों के सामने तब आप प्ले वगैरह कर ले या वो फन वगैरह। तो ये हमारे पास ऑडियंस भी जो है, ऑडियंस के ये एज भी डिपेंड करता है। जेंडर, फीमेल के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मेल के सामने या दोनों के सामने, तो ये भी हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन को इफेक्ट करता है। इज इट आ कैप्टिव ऑडियंस और विल दे बी देयर आउट ऑफ इंटरेस्ट कि आप जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए है या नहीं। क्या मतलब है कि देखो, अब अगर इंग्लिश की क्लास है और उसमें मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊं या F1 पढ़ाऊं तो वो ऑडियंस के लिए मींस अट्रैक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो तो आई इंग्लिश के लिए आप कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो ऑडियंस के ये फैक्टर हमारे पास वेरी मैटर करते हैं। विल यू स्पीकिंग इन देयर वर्क और लेजर टाइम, आप उनके काम के वक्त में बात कर रहे हैं या उसके फ्री वक्त में। ऐसा ना हो कि पर्सन थका हुआ आ रहा है, वो जो है आराम के साथ बैठ गया और आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर ली, तो फिर ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन या नहीं होगी। डू दे नो समथिंग अबाउट योर सब्जेक्ट ऑलरेडी और विल इट टोटली न्यू टू देम, इज द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ देयर वर्क। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो ये पहले जानते हैं या नहीं जानते, ये सब्जेक्ट न्यू तो नहीं है, इसमें इनमें इन लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है, ये उनके काम से रिलेटेड है या आप कोई एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहे हैं। आर यू देयर टू इन्फॉर्म, टी स्टिमुलेट और प्रोवोक, कैन यू यूज ह्यूमर एंड इफ सो व्हाट वुड बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। तो ये तमाम चीजें जो ऑडियंस की हैं ये आप अपने रिकॉर्ड में लाएंगे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने से पहले। मैसेज, The message are delivered by the presenter to the audience. The message is delivered not just by the spoken word but can be argumented by techniques such as voice projection, voice tone, body language, gesture, आई कंटेक्ट एंड एटीट्यूड। तो कहते हैं कि मैसेज, जो चीज डिलीवर करना चाहते हैं प्रेजेंटर उसको कहते हैं मैसेज। और मैसेज जो है वो सिर्फ ओरल नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी लैंग्वेज के से, आपके एटीट्यूड से, आपके आई कंटेक्ट से, आपके फेस स्ट्रक्चर से भी हमारे पास डिफरेंट मैसेज डिलीवर हो जाते हैं। किस तरह कि एक पर्सन आपके सामने संजीदा है तो उसके फेस जो है स्ट्रक्चर वो सीरियस होगा। कोई हंस रहा है तो आपको पता है ये पर्सन खुश नजर आ रहे हैं, जो है कोई गुस्सा है तो उसके फेस से आपको गुस्से का पता चल जाता है, आई कंटेक्ट से भी पता चलता है। तो ये तमाम चीजें हमारे पास फिर मैसेज में आती हैं। द मैसेज विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय द ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव बीन बिल्ड as speaking on a particular topic and you choose to speak on another, the audience is unlikely। अच्छा, मैसेज क्या है? मैसेज आपके ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक चीज मैसेज के तौर पे दे रहे हैं, आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, डायरेक्टली आप दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके ऑडियंस जो है वो बोर होंगे। तो मैसेज जो है आप डिलीवर करना चाहते हैं तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है कि वो स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो और लोग जो है उसके वर्क के मुताबिक हो, कोई एक्स्ट्रा चीज ना हो। दे विल जज योर प्रेजेंटेशन अ फेल्यूर बिकॉज यू हैव नॉट मेट देयर एक्सपेक्टेशन। और
जब आप ऐसी चीज पे प्रेजेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि उससे उनका कोई मकसद नहीं है, तो वो आपके प्रेजेंटेशन को फेल कर देंगे, क्योंकि उसका मकसद उन्हें कोई फायदा ना हो, तो वो फिर क्या करते हैं आपके प्रेजेंटेशन का। Reaction, the audience reaction and therefore the success of presentation will largely depend on whether you as a presenter effectively communicated your message and whether it met their expectation. Reaction के audience का reaction क्या है, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं आया वो ऑडियंस ने सही से उसे रिसीव किया नहीं, उन्हें इनका फ़ायदा हुआ या नहीं, तो ये प्रेजेंटर इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट हो गया आपका मैसेज या नहीं, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एज अ प्रेजेंटर यू डोंट कंट्रोल द ऑडियंस expectation. When you can do is find out what they have been told about you by the conference organizers and what they are expecting to hear. Only if you know that can you be confident of delivering something that will meet expectation. So कहते हैं कि आप ऑडियंस के सामने जब प्रेजेंट करते हैं तो वो उनके एक्सपेक्टेशन के वो पूरा करना चाहिए, पूरा होगा तो ये उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा, और जब ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे देन देयर रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, तो वो आपको पॉजिटिव रिएक्शन देगा, वो आपकी उससे सेटिस्फाई होंगे, फीडबैक जो है वो आपके प्रेजेंटेशन के बारे में अच्छा होगा। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन भी इंतहाई मैटर करता है। हाउ विल प्रेजेंटेशन बी डिलीवर, प्रेजेंटेशन आप किस फॉर्म में डिलीवर करते हैं, लाइव डिलीवर करते हैं, रिकॉर्ड किया हुआ है, विजुअल प्रेजेंटेशन है या सिर्फ वॉइस है, किस टाइप का है। Presentation are usually delivered direct to audience. However, there may be occasion where they are delivered from a distance over the internet, recorded and posted on internet. Then people may be able to access it for several years. कहें कि हमारे पास अक्सर तो प्रेजेंटेशन जो वो तो फेस टू फेस होते हैं, लेकिन हमारे पास प्रेजेंटेशन जो कि अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ऑनलाइन भी होते हैं, नेट यूट्यूब पे जो है लोग प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास इसका मेथड जो है वो इंतहाई ज़्यादा मैटर करता है। दिस विल मीन दैट यूर कंटेम्प्रेनियस रेफरेंस शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम। अब इम्पेडमेंट्स क्या हैं कि आपके पास जो है डिफरेंट वो फैक्टर्स बैकग्राउंड्स वगैरह जो आपके इस प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट करते हैं। मेनी फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ हाउ योर मैसेज इज कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस, सो इट्स आल्सो नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स that will affect your presentation, that will affect your communication, that how you communicate your message to your audience. For example, background noise or other distraction, and overly warm or cool room, or the time of day and state of audience alertness can all influence your audience level of concentration. कहें कि आपके पास different type of factors like noise, warm or cool room, audience are alert, they are serious, unserious, in fun, तो डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास हैं जो कि एज ए इम्पोर्टेंट्स हमारे प्रेजेंटेशंस को इफेक्ट करते हैं। एज प्रेजेंटर यू हैव टू बी अप्रोप्रिएट टू कोप विद यू any each problem and try to keep your audience focused on your message, and it's your responsibility as a presenter that you engage your audience. You means आप ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट करें, आप ऐसे जो है तौर तरीके आपको आने चाहिए, स्किल्स आपके पास हो कि आप किस तरह जो है ऑडियंस को फोकस करें अपने मैसेज पे जो आप उसको डिलीवर करना चाहते हैं। अब हमारे पास मीन्स टू प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन के हमारे पास मीन्स है कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला है ओरल ओनली। दिस माइट सिंपली इंक्लूड अ प्रेजेंटर स्पीकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस विदाउट एनी विजुअल एड। इसमें क्या होते हैं कि ओरली हम किसी को प्रेजेंट करते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता या हम उसको दिखाई नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ ओरल या वॉइस मैसेज होता है। This type of presentation can be difficult since it can be hard to grab audience attention without any visual aid. If you are, so it's very difficult. It's not so effective presentation because in this presentation you are unable to see, you are unable to watch your audience. That will affect your presentation. If you are looking to give an oral presentation, you must have very good presentation skill and the compelling story to tell your audience. देखो कि अगर आप किसी अपने ऑडियंस को देखते हैं या प्रेजेंट करते हैं तो आप में इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि जो है आप उनको एक स्टोरी या जो भी प्रेजेंट करना चाहे तो वो इतना गुड हो ताकि आपके ऑडियंस उसे गौर से सुने। In fact, your audience is likely to be more interested if your presentation
इफ यू आर प्रेजेंट योर आइडियाज कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन लाइक अ स्टोरी। और जब आप उनको एक स्टोरी, एक कनेक्ट फॉर्म, एक कोहेरेंस फॉर्म में अगर आप उसे बताते हैं तो स्टोरी के फॉर्म में, तो वो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट, वो इंतहाई मीन्स सही तरीके से आपका वो प्रेजेंटेशन वगैरह सुनेंगे, आपका मैसेज जो अच्छे तरीके से डिलीवर होगा। While it might seem unlikely that someone would resort to an audio-only presentation, however, this too can be quite an effective method for creating a sense of mystery, of making your audience pay more attention to the content of your presentation। तो कहें कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है किस टाइम, कि जब आप चाहते हैं कि जो ऑडियंस है वो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने उन्हें दिया है तो उसको दे के मीन्स प्रेजेंटर को, तो उसमें जो है उनका जो तवज्जो वगैरह हैं वो कम हटती हैं कि, और क्या होते हैं कि ऑडियंस पे मोर, तो आपके ऑडियंस जो है वो क्या है, वो मोर अटेंड, वो आपके प्रेजेंटेशन को, कंटेंट को जो है अटेंशन के साथ देखते हैं, क्योंकि वो आप उसको नज़र आते नहीं है, वो कंटेंट नज़र आते हैं और आपकी आवाज़। Such a presentation might be presented in a form of story, read out or played by an audio device। क्या है कि ये हमारे पास जो है स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंटेशन होती है। तो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि जो हमारे पास ओरल या ओरल ओनली प्रेजेंटेशन है वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ स्टोरी होता है। अब विजुअल ओनली है, दी माइट इंक्लूड अ सेट ऑफ इमेज और अ वीडियो प्लेइंग आउट बिफोर एन ऑडियंस। तो इससे आपको पता चलेगा कि ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें पिक्चर या वीडियो वगैरह दिखाती, इसके साथ कोई वॉइस वगैरह नहीं होती। सच अ प्रेजेंटेशन माइट इंक्लूड अ स्लाइड और वीडियो क्लिप विद अ टेक्स्ट दैट ऑडियंस रिक्वायर्ड टू रीड टू अंडरस्टैंड द विजुअल, a silent animation with a symbolical message or a set of image played like a slide show। तो इसमें स्लाइड शो, साइलेंट मैसेज वगैरह होते हैं जिसमें आप उसके साथ कोई वॉइस वगैरह नहीं होती। विजुअल एंड ओरल प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें आप अपने प्रेजेंटर को देखते हैं और सुनते हैं, जिसमें ऑडियंस प्रेजेंटर को देखते और सुनते, तो वो हमारे पास फिर विजुअल प्रेजेंटेशन आता है। विजुअल प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, वेदर इट, अब आपके पास एमसीक्यूज ये आते हैं कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन हमारे पास विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, जो हमारे पास क्लास वगैरह में टीचर वगैरह प्रेजेंट करते हैं तो वो तमाम विजुअल एंड ओरल प्रेजेंटेशन में आते हैं। वेदर इट इज अ प्रेजेंटर डायरेक्टली और रिमोटली प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन और अ वीडियो प्रेजेंटेशन प्लेइंग आउट बिफोर एन ऑडियंस, द यूज both visual and oral explanation is usually the most effective method for presenting presentation। क्या होते हैं, आप ऑडियंस के सामने खड़े हो कि उसे प्रेजेंट करते हैं, वो आपको देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज, फेस स्ट्रक्चर, सब चीज़ें। तो ये हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट भी करते हैं, जिस तरह बैकग्राउंड, हमारे पास म्यूजिक बैकग्राउंड, ऑडियो इफेक्ट या नॉइस वगैरह, ये हमारे पास उसको इफेक्ट करते हैं। अदर देन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड द यूज ऑफ डिवाइस लाइक प्रोजेक्टर, मॉनिटर एंड टीवी स्क्रीन, विजुअल एंड ओरल प्रेजेंटेशन माइट आल्सो इंक्लूड फोटोग्राफ, व्हाइट बोर्ड्स एंड हैंड आउट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास जो है मेथड्स हैं, इसके जरिए क्या होता है, इसके जरिए भी हमारे पास प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटर जो है वो अपना प्रेजेंटेशन जो है वो डिलीवर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस के साथ। अब हमारे पास एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए टिप्स हैं कि अगर कोई चाहता है कि आई वांट टू डिलीवर माय प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली, सो हियर आर द टिप्स फॉर दोज पर्सन। कौन से टिप्स हमारे पास के, शो यूर पैशन एंड कनेक्ट विद यूर ऑडियंस, आप अपना जज्बा दिखाएं, ऑडियंस के साथ कनेक्ट में रहें। फोकस ऑन योर ऑडियंस नीड, जो ऑडियंस की नीड है, मीन्स जो मैसेज वो लेना चाहते हैं, जो मैसेज वो रिसीव करना चाहते हैं, उस पर आप फोकस करें। कीप इट स्माइल, कंसंट्रेट ऑन योर कोर मैसेज, स्माइल एंड मेक आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस। देखो, आई कांटेक्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि इससे पेशेंट जो आपके ऑडियंस होगी उसकी तवज्जो बरकरार रहेगी। स्टार्ट स्ट्रांगली, रिमेंबर द 10, 20, 30 रूल्स ऑफ स्लाइड शो। ये इंपॉर्टेंट आप याद रख ले कि ये हम किसी प्रेजेंटेशन में ये हमारे पास रूल होते हैं। तो 10, 20, 30 क्या हैं, ये हमारे पास ये हैं कि ये हमारे पास पावर पॉइंट के लिए रूल हैं कि आपके जो प्रेजेंटेशन, अगर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं तो वो 10 स्लाइड्स पे मुश्तमिल हो, वो 20 मिनट के टाइम में आप प्रेजेंट करें, और उसमें हमारे पास जो फॉन्ट साइज वो 30 पॉइंट स्मॉलर देन 30 पॉइंट से हमारे पास फॉन्ट हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होगी। आप इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी प्रेजेंट करेंगे, आप अपना वॉइस इफेक्टिवली मीन्स वॉइस देंगे,
आपका वॉइस जो है वो इफेक्टिवली क्लियर स्पेसिफिक टू द पॉइंट हो। यूज योर बॉडी टू, आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज करेंगे। अगर सीरियस बातें तो फेस स्ट्रक्चर आपका सीरियस, फनी बातें तो आपका फेस स्ट्रक्चर फनी। रिलैक्स, ब्रीथ एंड एंजॉय, आप अपनी प्रेजेंटेशन को एंजॉय करें, रिलैक्स होकर आप अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। तो ये हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन का यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।